منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں وہ بھی ابھی پیچھے نہیں ہٹی، اس نے کر اقرار کیا۔ وہ الگ بات ہے، وہ ظاہر نہیں کر رہی تھی مگر دل میں اور ڈرنے لگی تھی۔ کیسے ڈیبٹ کرتا اور خوبی واقف تھا، پھر سامنے کھڑی لڑکی تو ویسے بھی اس کی نئی محبت ذرا دیکھ سکتی تھی۔ وہ لڑکی کس قدر کڑکڑ کھڑی تھی مانا اس کی آنکھوں میں مگرمچھ کے آنسو تیر رہے تھے، لیکن میں جھلکتی فاتحانہ مسکراہٹ ڈر کی آنکھوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ بس نہیں چل رہا تھا ظاہر کہ اس لڑکی کا منہ توڑ دے۔ یقیناً ابھی یہ سب اس کے سامنے مجھے شرمندہ کرنے اور اپنی نئی محبت کی آنکھوں میں نمبر بڑھانے کے لیے مجھ سے معافی منگوائے گا، بغیر یہ دیکھے کہ یہ مکار عورت ناٹک کر رہی ہے، اس نے خود نقصان پہنچایا ہے اپنے ہاتھوں کو۔ وہ حسین لڑکی کی دانتوں پکڑتے ہوئے دل کو کڑکڑائی۔ اسے ارے سے ایک سے بھی اچھے کی امید نہیں تھی، وہ کیوں کر رہا ہوتے اور جائی تھا ہی کب رشتہ۔ دیکھا آپ نے، انہوں نے خود قبول کیا ہے، اب آپ فیصلہ کریں۔ آئینے کی اسکرار سن تیزی سے زکام بھری آواز میں بولی تھی۔ سب دیکھ چکے تھے۔ اریز کا جھکاؤ آئینے کی جانب زیادہ ہے اور ہونا بھی چاہیے تھا، مظلوم بھی لگ رہی تھی سب کو۔ تو زویا تو کہانی کی ولن لگتی معلوم ہوئی۔ زویا کی مرض تو ایک فزیکل عورت کی بنی جو ایک عام سی لڑکی کی صرف اس لیے پیچھے پڑی ہے چونکہ اس کا شوہر اس کی میوزک پسند کر رہا تھا۔ احسن چودھری، آپ ہی بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ حسین نوجوان بلیک پینٹ کوٹ میں ملوث کے قریب آ کر دونوں ہاتھ پاکٹ کی جیب میں ڈالتا استفسار کر رہا تھا۔ ارے اس کا سوال سنو، زویا کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ یقیناً وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی سزا خود منتخب کرے۔ اس کمینی سے کہنا چاہیے کہ دفعہ ہو جاؤ اپنی مکار شکل لے کر یہاں سے، اور وہ بھی زویا تھی۔ حال نہ سیکھا ہی نہیں تھا اس نے قبل، اور اپنے درمیان کی دوری خود مٹا کر دانت پرستے ہوئے بولی۔ وہ جانتی تھی اریز نے یہ سوال صرف تنزیہ ہی کیا تھا، اب ایسا ہونے سے رہا کہ مجرم کو ہی جج بنا دی جائے۔ ہر بار کی طرح اس نے تحمل سے زویا کی بات سنی۔ گیٹ لاسٹ، گیٹ لاسٹ، بس اریز کو پلٹ کر آئینے کو دیکھ کر کہنا تھا کہ سبق کا وقع ہو گئے۔ آئینے کو تو پہلے ہی سمجھ نہیں آیا کہ وہ ہوا کیا ہے۔ اریز نے اسے دیکھ کر گیٹ لاسٹ کیوں کہا؟ ہاں، آئینے فوراً نہ سمجھی سے سنا نہیں کیا میری بیوی نے کہا ہے دفعہ ہو جاؤ، اور اس لیے میں اریز کی گرہی آنکھیں بدل گئی۔ دلی میں جو لمحہ بھر میں بدلاؤ آیا تھا، آئینے سے دم کو خود ہو کے دیکھ رہی تھی۔ سکلین ہو ڈاکٹر نروس اب اریز کو لچ کر دیکھنے لگے تھے۔ مگر انہوں نے میرے ہاتھ زخمی کیے ہیں۔ آئینے کچھ لمحوں تو بے یقینی کے عالم میں کھڑی رہی، پھر جب اسے یقین آ گیا کہ اریز اتنا سب کچھ ہونے جانے کے باوجود اپنی بیوی کی سائیڈ لے رہا ہے تو فوراً احتجاجاً و اعتراضاً ٹینک اٹھی۔ کیا اریز اسے پسند نہیں کرنے لگا تھا؟ کیوں؟ وہ اریز نہیں تھا جو اس سے روزانہ سننے آیا کرتا تھا کلب میں؟ کیا وہ اریز نہیں تھا جو ایک بزنس مین سے بھی اس کے لیے لڑ گیا تھا؟ پھر وہ اچانک کیسے اپنی انچاہی بیوی کی خاطر ناانصافی پر فیصلہ سنا رہا تھا؟ تو قبل کھڑا وہ جیا نوجوان کی لاپرواہی سے آبرو چکا کر پوچھنے لگا۔ زویا ٹرانسفر کی اسی کیفٹ میں کھڑی اپنے شوہر کو تک رہی تھی۔ اس نے کوئی صفائی نہیں مانگی، بس اس کا کہا حکم کی طرح لازم جان لیا۔ آئنسٹا پاٹ گئی، اس کی ساری خوشی گمانی دری کی دری رہ گئی۔ دل کے پینے کے لیے اس کا ہاتھ بہت قیمتی ہوتا ہے، اور اس نے صرف اریز کو پانے کی چاہ میں خود اس سے زخمی کر لیا، مگر اس لڑکی نے اپنا پورا فیوچر داؤ پر لگا لیا صرف اریز کی خاطر، اور بدلے میں وہ تو اپنی بیوی کے آگے اس کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ گیٹ لاسٹ، ابھی اینی مجھے کچھ بولتی اس سے قبل ہی اریز دانت پستے ہوئے گڑگڑایا۔ سکلین وہ آنکھوں سے اشارہ کر کے بھی سکلین اس لڑکی کو ہٹا سکتا تھا، مگر اس کے غصے کا لیول اس قدر ہائی تھا کہ اس نے سکلین کو باقاعدہ خود آواز دی، اور بس اس کی برہم تار آواز کمرے میں گونجنا تھا کہ سکلین اس لڑکی کو عبادت سے پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ اگلے ہی پولیس نے ڈاکٹر اور نرس کی جانب دیکھا، وہ اس کی آنکھوں کا اشارہ سمجھتے فوراً ہی کمرے سے نکل گئے تھے۔ اب صرف زویا اور اریز بچے تھے کمرے میں۔ میں یہی لگا تھا نا کہ اب میں تم سے معافی منگواؤں گا، وہ پلے فل انداز میں کہا۔ اب زویا کے بالوں کو کان کے پیچھے راس رہا تھا، اس کی انگلیوں کا سرد نمبر زویا کی سانسیں روکنے لگا۔ وہ سرمئی آنکھیں والی
नाजुक सी गुड़िया नज़रें झुका गई थी। इस शख्स की जुत्ती बहुत पावरफुल थी। एक तो नज़दीकी, फिर इसकी उंगलियों की बेबाकी, जुल्फों में राहत। वो चाहकर भी नजरें ना हटा सकी। जवाब दो ज़ोया। इसे जवाब ना देता देख कबल ने इसकी ठोड़ी पर उंगली जमाकर चेहरे को ऊंचा किया। अभी वो जवाब देती इससे कबल ही टेल रिंग हुआ। कॉल आते ही वो फौरन एक कदम इसके पीछे हटी थी। सांस बहुत फुली सी हो रही थी इसकी, जैसे न जाने कितने दूर से भाग कर आई हो। हाँ नाना तो जैसे इसके लिए राहत साबित हुई थी, वरना इस दिन नौजवान के हाल था। वो चल पर इससे निकाल कर बात करने लगी थी, जबकि अरेज की निगाहें इसका शर्ट तमाम मुकम्मल जायजा ले रही थी। व्हाइट कलर वाली शर्ट पर येलो कलर का कोट और पैंट जे बटन किए वो नहायत ही खूबसूरत और प्रोफेशनल लग रही थी। जुल्फों को हर बार की तरह खुला रखा था। सॉरी अदनान, अचानक एक जरूरी काम आ गया था, मैं बस ये आ ही रही थी। फोन अदनान का नाम कानों की समात से टकराते ही अरेज के कान खड़े हुए। वो इतना बन टन कर अदनान से मिलने निकली हुई थी कि सोते ही इसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात छाए। तुम किससे मिलने जा रही हो? ऐसा नहीं है कि सुना नहीं था, मगर तस्दीक किसके मुंह से चाहती। हाँ अदनान से आज हमारा डिसाइड हुआ था मिलने का। वो मेरे पास रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहा है। क्या तुमने नहीं कहा था तुम्हारा कंटेंट नहीं है इसे? रेस की गहरी गहरी आंखों में जो नागवारी रही थी, जोया इसे कर रही थी। एज अ फ्रेंड फोन और मैसेज पर बात करती हूँ मैं अब, मगर आज मिलने की वजह खास है। खास आंखें दरवाजे से ट्विस्ट हुई। अब वो किसी किस प्लान की तरह जवाब के लिए इस पर नजर टिकाए हुए था। इसकी वालदा ने मुझे बताया था कि वो शादी नहीं कर रहा। मैं इसे हानि मिलकर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेरा इंतजार न करे। वह हैरान थी। ये देख जैसे इसके जुमले अदा हुए, वैसे अरेज मिलक के चेहरे पर बड़ी सी इंतजार कर रहा होगा। चलो जल्दी चलते हैं, झलक से कहता है। जोया का हाथ पकड़कर खींचने लगा। तुम साथ जाओगे मेरे? वो हैरान कन लहजे में पूछे। बिल्कुल, अब चलो देर नहीं करो। इसके हाथों को मजबूती से थामकर झलक के आगे बढ़ने लगा। जोया कभी इसे देखती तो कभी इसे थामे हुए हाथ को बेयकीनी हैरत की मिली जुली सी कैफियत में इसके पीछे पीछे चली जा रही थी। अरेज ने खुद आगे बढ़कर याची के लिए गाड़ी का डोर खोला था। वो खुशहाल मूड में दिखाई दे रहा था। गाड़ी में सीट बेल्ट लगाते ही इसकी नजर जोया की जुल्फों पर पड़ी है। अरेज ने अपनी पॉकेट से ब्लैक रुमाल निकाल इस पर टाइगर कालो को नजर आ रहा था, फिर लोगो नजर आता, फिर दोनों गोल गोल घुमाने लगा। जोया भी सीट बेल्ट लगाकर सीधी हुई थी कि एकदम गड्ढा की तरह रेजिस पर छा गया। उसकी सुमई आंखें हैरत से पहले बदला नजदीक आ गया था कि करीब था कि नाक मिस हो जाती। इससे नौजवान की गर्म सांस से जोया के दिल पेट बढ़ा गई थी। वो सांस रोके किसी बुत की तरह इसे देखने लगी। उसकी सुरमई आंखों में झांकते हुए कबल ने अपना काम शुरू किया। जोया ने महसूस किया कि उसकी गर्दन की पुष्ट पर कपड़ा मिस हुआ है। आंखों के नशीले जाम आंखों से फैलाते उसने जोया के बालों के नीचे से रुमाल गुजारा और फिर सारे बालों को एक साथ दोनों हाथों से गिरे लगाकर पोने की तरह कैद कर दिया। गर्मी लग रही है तुम्हें देखकर ही मुझे, वो झंझन कहता जब हटा तब जाके जोया को सांस आई थी। जिसकी अपनी हालत इतनी गैर थी कि इसने अरेज को नहीं देखा और ना ही देखती। कबल ने भी फौरन ही अपनी टाई ढीली की थी और साथ ही ऐसे को फुल किया की आदत थी जोया के सारे स्टाइल और फैशन को बिगाड़ देने की। इसी लम्हा भी कबल ने यही नामा अंजाम दिया था। जोया ने फौरन ही आईने में अपना अक्स देखा। वो अब इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी जितनी बाल खुलने में लग रही थी। इसने फौरन ही एक जल तड़ी निगाह अरेज के चेहरे पर डाली। आखिर इस बंदे का मसला क्या है? वो दिल कड़ाई मगर मुंह से एक लफ्ज अदा न किया। वो दोनों एक साथ ही रेस्टोरेंट पहुंचे थे। बस उनके रेस्टोरेंट में दाखिल होना था कि अदनान की आंखें ईंधन पर ऑन टिकी। रेज जोया का हाथ थामे हुआ था। अदनान कैसे न देखा, दिल में शिद्दत से पीछे उठी थी। मिस्टर रेज वो वेलकम करने के लिए एज अ मेजर ये मैंने फौरन किया। मिस्टर अदनान माना। रेज के होंठों पर अब मुस्कुराहट नहीं थी, मगर इसकी आंखें उनकी गहरी आंखों में फातिहाना मुस्कुराहट रख सकी, जिसे अदनान ने पहली ही निगाह में महसूस कर लिया था। जोया बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी रेज के साथ। अदनान से मिलते हुए जैसे कह भी तो नहीं सकते थे। दोनों ने हाथ मिलाया था, मगर हाथ तो क्या ही मिला रहे थे। जोया को महसूस हुआ जैसे प्रेम का ऐलान कर रहे हो एक जेंटलमैन की तरह। जब अदनान ने जोया के लिए कुर्सी खिसकाई तो साथ ही रेज ने भी खिसका दी। रेज ने कब से इसके साथ जेंटलमैन
और बिहेव करने लगा। वो समय अंक वाली लड़की यही सोच रही थी, क्या वो शख्स नहीं था जो फ्रंट सीट पर इसे अपने साथ गाड़ी में बैठने तक नहीं देता था। जब कोई आपके लिए चढ़ खिसाता है तो यकीनन वो आपको इज़्ज़त व एहतराम देता है और बड़े ईमान से खड़ा होता है कि आप बैठेंगे। और इस वक्त वो दो बंदे से एक साथ में इज़्ज़त बख्श रही थी। एक तरफ शौकत और दूसरी तरफ बचपन का दोस्त, जिसकी भी चेयर पे नहीं बैठेगी इसकी की बुरी बनेगी। और हाँ तो वैसे भी वर्ड जारी था इन दोनों की जानिब से। अभी वो अपनी गर्दन की पीठ पर हाथ रखकर मसलते हुए ये सोच ही रही थी कि कौन सी सीट पर बैठूं कि रेज ने अगले लम्हे से बाजू पूरे हक पर पकड़ा और इसे अपनी साई चेयर पर बिठा दिया और खुद अदनान की ठुकाई हुई चेयर पर बैठ गया। शुक्रिया, बैठते जाए आप भी, रेज ने हल्की सी मजाकिया बसम मतलब किनारे पर से जाए अदनान की जानिब देखा। वह बेचारा दान पीछे हुए बैठा था। इसे तो पहले यही समझ नहीं आ रहा था कि जोया रेज को साथ लाई ही क्यों। टेबल पर ऐसी खामोशी चाहिए हुई थी जैसे किसी का इंतकाल होकर चुका हो और शौक नया जा रहा। रेज तो अपने सहन में मगन हो गया था, मगर जोया और अदनान जो आमने सामने बैठे हुए थे वो देख कर मुस्कुरा रहे थे। वेटर ने हिलाकर इन्हें मेन्यू दिया तो तीनों ये मेन्यू देखने लगा। जोया, तुम्हें याद है डिशेज तुम्हारी फेवरेट क्या थी? फिर रेस्टोरेंट याद नहीं, क्या डिशेज था याद होती? जोया ने फौरन ही नफी में चला रहा था मुस्कुराते हुए। तो फिर मुझे पर छोड़ दो, मैं ऑर्डर कर देता हूँ तुम्हारे लिए भी। अदनान के कहते ही जोया ने फौरन इस बात में सर लाकर अपने मेन्यू फाइल बंद कर दी थी। वैसे मिस्टर रेज है आपकी वाइफ है, आपको नहीं लगता आपको आपकी पसंद और नापसंद का इल्म होना चाहिए जैसे गैरों के होता है? इसने गैरत तंजीह कहते कि ना इशारा तहरीन की जानिब था। वो तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं। वो अपने मोबाइल के स्क्रीन पर नजर जमाए हुआ था जब इसके कानों के माथे अदनान के तंजीह बड़े जुमले टकराए। अगले ही लम्हा वो सीधा होकर बैठा अदनान की जानिब देखते हुए बड़े अंदाज में बोला फिर मिस्टर रेज डिशेज जोया की तरफ से ऑर्डर कर दे। अदनान ने मुस्कुराते हुए कहा। अंदाज़न चैलेंज भरा था। शोर नहायत लापरवाही से कंधे झुकाते हुए राजी हुआ। वेटर आया तो रेज ने मेन्यू का कार्ड खोलकर देखने की भी जहमत नहीं की। पायो दी पिज़्ज़ा, ब्राजीलियन चीज ब्रेड, सालिड फ्यूट्स, पाई स्टाइल कैरम इन कोकोनट सॉस, ब्राजील चिकन स्वीट, रेड स्नैपर विद पेपरिया एंड मैंगो सॉस फिगर। वो जैसे जैसे ऑर्डर देता जा रहा था वैसे वैसे अदनान की हैरत में इजाफा होता जा रहा था। ब्राज़ील में कोकोनट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है खाने की अशिया में। बोल दे रोल डिसर्ट। आखिर में इसने तक ऑर्डर किया था। बोलो डी रोल ब्राज़ील की ट्रेडिशनल मीठे में से एक है जो स्विस रोल बहुत ज़्यादा जैसा होता है, बस केक की लेयर थोड़ी मोटी होती है। बोल दी रोल क्या मुझे पसंद है। जब इसकी याददाश्त गई थी इसने कभी नहीं खाया और ना ही कभी बिस्मा ने बताया इससे मुतल्लिक। जोया को सिर्फ इन चीज़ों का इल्म था जिसका मुतल्लिक या तो बिस्मा ने इसे बताया था या अदनान ने। जोया के लहजे में शकुकपन था। अगर मुझ पर यकीन नहीं आ रहा तो अपने बचपन के दोस्त से पूछो। रेज ने खासा लापरवाही से जवाब दिया था। जोया ने फौरन ही अदनान की जानिब देखा। अदनान ने फिकत आंखों के इशारे से बात का इशारा दिया। इसे नहीं लगता था कि रेज मलिक इसकी पसंद के मुतल्लिक कुछ नहीं जानता। वो तो कितना बेगाना सा रहता है इससे। अगर ये खाने अदनान बताता तो जोया को कोई हैरत ना होती। वो बचपन का दोस्त था और वो ये भी जानती है कि मुगब्बर इसे पसंद करता है। मगर अरेज मलिक वो कब से इसकी बातों को अहमियत देने लगा, वो कब से इसकी बातों को याद रखने लगा, वो कब से इसकी पसंद नापसंद को ध्यान रखने लगा। हैरान की और बेयकीनी से वो बहुत छोटे से अल्फाज के लिए जो जोया इस लम्हे महसूस कर रही थी। अब लगता है इसके दिल को देखता है इस नजर भर कर कभी देखता भी है, मगर वो देखता है और ना सिर्फ देखता है इसकी डिटेल कहता कि वो किसी रेस्टोरेंट में क्या पसंद करती है और मीठे में क्या लेती है यह तक जानता है। इसके ऑर्डर करने के बाद अदनान ने अपना ऑर्डर लिखवाया। इसने नौजवान ने जोया की तारीफ में निगाह डाली। वो हैरत से तक रही थी जिसमें कबल भी पड़ी से देखने लगा। बस प्यारी बोलती आंखों का देखना था कि जोया होकर फौरन पानी का गिलास उठाकर अपने लबों से लगा गई। इसकी गाल जलने लगी थी। रेज की निगाहों की तपश वो अब भी अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी क्योंकि अदनान ने ये पुराना देखते हुए टेबल के नीचे में थी। अदनान ने इसे खास तौर पर इसलिए बुलाया था ताकि इसे पर प्रपोज कर सके, इसे हिम्मत दे सके, वो तलाक ले रेज से वो मौजूद अभी इसका हाथ थामने के लिए तो जरूरत नहीं है। रेज मलिक के जालिम सहने की या इसके साथ जबरदस्ती रहने की, मगर रेज की मौजूदगी में वो ये बात कैसे कर सकता था? अब वो सुना है तुमने बुटीक दोबारा ज्वाइन कर लिया है, काम कैसा चल रहा है?
अब अगर तुम्हें न्यू वर्कर की ज़रूरत है तो मुझे बता सकते हो, मेरी खाली है और फील्ड में, तो मैं तुम्हें बता दूँगा। वो अदनान था जिसने कॉल पर आई कमर्शियल को तोड़ा था। जब तुम लड़के को जानती को पकड़कर शादी क्यों नहीं कर लेते? अनिल की बात सुन फौरन सर्च करने लगा। क्या वो नहीं जानता था अदनान अब तक क्यों तुम्हारा बैठा है? शादी बहुत बड़ा फैसला होती है, अरेंज यूं ही नहीं कर ली जाती। और फिर मैं आपकी तरह बड़ा आदमी थोड़ी हूँ कि बीवी भी रखो और बाहर वाली भी। मुझे एक ही चाहिए, घर में भी और बाहर भी। इसलिए मैं ऐसी औरत का इंतजार करती हूँ जो घर में भी चाहिए और बाहर भी। सुना होगा आपने, का पानी मीठा होता है। अदनान ने कैसे पीछे आग लगाई थी अरेंज में दूसरों के पल पर नजर रखकर खबर का खुशी होती है, वो भी अरेंज में लिख स्टोरी 1 मिनट के करके रख दिया था इसने अदनान के जवाब में। अदनान ने कान पूछते हुए से पूरा इस अंदाज में नहीं था मुकबल इतना खुला जवाब दे देगा। जरूरत तकती रह गई। अरेज को खुले खुले लम्हों से लड़ रहा था पर शर्म कोई लिहाज अदनान लड़ नहीं सकता था। इस तरह एक मौजूद को लगता था मुंह पर पटी हुई जो किसी वक्त भी बैठी है, वो किसी वक्त भी पड़ सकता है। मॉल पर चाय गरम गरम आ रही थी। खाना आ गया इसकी कुछ लोग कहते हैं। अदनान और इस दोनों ने हैरत से देखा। वो यूँ जैसे जैसे खाना न मिलता हो या पहली बार रेस्टोरेंट में अगर खाना खा रही हो। अचानक दोनों के ही एक साथ हैरत से देखने के सबब जो है शर्मिंदा से हो अपने गर्दन की पश्च को मसलते हुए नजरें झुका। मेरा मतलब था खाना आ गया, खाना खा रहे थे, पहले बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए जो कैसे फौरन प्लेट में खाना निकालने लगे थे। खाने के दौरान ये खामोशी लगा ये तुक्का सांस लिया। अदनान आंटी बहुत परेशान रहती है, तो शादी मोल पर जब पुरस्कुनी छा गई तब जाकर जोए ने अपनी बात रखी। वो भी काफी दोस्ताना अंदाज में। साथ ही इसने रेस के हाथ पर अपना हाथ रखा था जो इशारा था अदनान के से वो आगे। वो खुशी अपने को अरेज को छोड़ना नहीं चाहती। मैं ऐसे मगन था जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। जोए ने इसके हाथ पर हाथ रखा मगर इसने तब भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। अदनान ने इसकी बात सुनने से कहीं ज्यादा हाथों को मोमेंट को देखा। दिल में बहुत अंदर तक टूटा मगर लबों पर जख्मी से मुस्कुराहट के अलावा कुछ नहीं आया। माँ मेरे लिए लड़कियां देख रही है मगर मुझे वो समझ जानती हूँ तुम ही मेरे लिए कुछ लड़की पसंद कर लो। ध्यान की आंखों में उतर आई थी। एक बहुत सालों पुरानी आस टूटी थी। आज दुख तो होना ही था, रंज तो पहुंचना ही था, अजियत से तो गुजरना ही। वो भराई हुई आवाज में मिट्टी बल्ला जाए को अपनी याद नहीं कहाँ से होगी। मगर बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे दोस्त का हस्बैंड होने के नाते तुम्हारे लिए पहला जुमला रंज भरा था। आखिरी जुमला इतना ही जताते हुए अदा किया था अजय फिलहाल ने कुछ जवाबी कार्रवाई ना की। वो अब लड़की की कार्रवाई ना की। वो अब लड़ने की हालत में नहीं रहा था। बेचारा रोए कतरा हुआ चेहरा देख सकती थी अपने दोस्त को यूं दुखी होता देख। वो भी दिली तौर पर बहुत ही उदास और रंजीदा सी हो गई थी। चलो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ओके ओके भी जरूरत हो तो मुझे मैसेज कॉल करने में हिचकिचाना मत। अदनान के मुस्कुराकर कहते हुए जोहर ने इस बात में बताया। वो देख सकती थी कि अदनान मुस्कुरा जरूर रहा है लेकिन इसकी आंखों में बहुत रंजीदा सी थी। अदनान इसके सामने गाड़ी में बैठकर चला गया। जोया उसकी गाड़ी को जाता सुस्ती से देखती रही। वो गाड़ी के बैक व्यू मिरर से जोया को देख रहा था। यह सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है किसी और की छत पे क्यों मेरा चांद चमकता। की आंखों में अब आंसू भर आए थे। वो काफी देर से रुकने की कोशिश में लगा था। कभी कभार के मोहब्बत नहीं मिलती, इंसान कुछ भी करता है रह जाए दुआएं सजदे मिलते हैं, मुरादें कुछ भी करे बस नहीं मिलती। और ना ही और ना कदरों को यूं ही मिल जाया करती हैं। तुमने कदर की शायद इसे ना गार ठहरे वो क्यों नहीं मिली। इससे पहले हारिस और फरीद आंसू के इसकी जिंदगी में दुख हो रहा है। तो लवर को अपने छोड़ने का वो ब्लैक रुमाल से बंधी पड़ने वाली अपनी अपने पास के कानों की समाज से टकराई। वो दोस्त था मेरा बचपन की दोस्ती है हमारा और तुम जानती प्लीज आप लफ्जों में शक्ल